whereby there is a greater connect with the fans, and with Nayab, with Pankaj, we continue to work on numerous initiatives. So we'll do that. And thank you so much, sir, for making us a part of this, and wish you all the very best. Thank you. I'd like to thank our official radio partner, Radio Nasha, and I'd like to call upon Sirish to come and say a couple of words on behalf of Radio Nasha. Greetings, ladies and gentlemen. Thank you so much, Pankaj ji. Thank you so much, everyone, कि आप सब इस नोबल कॉज के साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं. हमें ये दूसरा साल है एसोसिएशन का इस इवेंट के साथ, पंकज जी के साथ, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ इट. वी आर वेरी हैप्पी विद दिस एसोसिएशन, एंड सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी नोबल कॉजेस के साथ जुड़ते रहिए. थैंक यू सो मच पंकज जी. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. Our official outdoor hoarding partners, Minimax, Shri Arvind Bhandari, we would like to thank you very much for being with us year after year. We would like to thank Vaibhav Patel of Ginger PR for always being there for all our PR work. We would like to thank Reva Udas for making all the videos for social media network. We would like to thank Nayab Udas, the event company, for all the hard work she does to put the event together. Before I sign off, I would like to share just a couple of things with you. I have two of my trustees from Parents Association Telesymbolic Unit Trust, Shri Rashmi Shah and Shri Suresh Mehta. We've been working on this whole aspect of thalassemia for a long time. Khazana has proved to be a boon for us for one simple reason, that now for children there is bone marrow transplant available, which cures a child completely of thalassemia. We have just tied up with Kokilaben Ambani Hospital. They have a ward which does bone marrow transplant. And with the money collected from Khazana, in the last couple of years, we've been able to help nearly 50 odd children for the bone marrow transplant. And now we have a list of nearly 100 children who would be going through bone marrow transplant in Mumbai, in Bangalore, and it really feels wonderful to share this with you, because I feel that Khazana has really done a lot for us, for our purpose. The same way Cancer Patients Aid Association has gone ahead and helped so many needy cancer patients, and it's all due to Khazana. We would certainly, last but not the least, like to thank the Oberoi, Shri Barma and his entire team, that they have always come forward to support us. Khazana wouldn't have been possible without their support. So our sincere thanks to Oberoi, their entire staff, and I wish that this association continues for years to come for the good of cancer patients and thalassemia children. Since we are here in the 16th year and a bit nostalgic, I'd like to invite, as some of you might know, that the whole idea of Khazana emerged from the three of us, which is myself, Anup, Jalota ji and Talat Aziz. We were at a party, at an evening, and sitting and talking and chatting about Khazana, the good old Khazana. And we decided to revive it.
and in 2002 we launched Khazana again, relaunched, whatever you say. So I'd really like to request Anup Bhai to come and say a few words and share his experience of Khazana in the last 16 years. सोलह बरस की बाली उम्र को सलाम, मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। 16 साल हो गए और इस बार 16 आर्टिस्ट भी हैं। 16 साल की उम्र में जो मोहब्बत होती है वो बहुत ही प्योर होती है, उसके बाद इंसान दिमाग लगाना शुरू कर देता है। एक शेर है कि अभी कमसिन हो नादा हो, अभी कमसिन हो नादा हो, कहीं खो दोगे दिल मेरा। अभी कमसिन हो नादा हो, कहीं खो दोगे दिल मेरा, तुम्हारे ही लिए रखा है, ले लेना जमा हो। खजाना एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें अब लोग दूसरे कंट्रीज से डेट्स प्लान करके आते हैं कि खजाना भी देखेंगे, महफूज भी है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो हमको फोन करते हैं, भाई इस बार कब है, तो हम उन्हें बता देते हैं ये डेट्स हैं, ठीक है, हम उन्हीं दिनों अपनी विजिट करते हैं, आते हैं, अपना काम वाम भी कर लेते हैं, घूम फिर लेते हैं, और अगर उनको टिकट्स मिल जाती हैं तो आ जाते हैं। सच तो ये है कि टिकट्स अब मार्केट में आती नहीं, पहले से ही चली जाती हैं उन मेहरबान लोगों को जो बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं एक बहुत अच्छा स्लोगन देने वाला हूँ यूनियन बैंक को, कि विदाउट यूनियन वी कैन नॉट बैंक। एक ऐसा सपोर्ट है ये, और भी कई हैं, ओवर एंड टोटल हम लोग सोच ही नहीं सकते कि इसके बगैर क्या हम खजाना कर पाएंगे। और अब तो इतने लोग जुड़ गए हैं, जुड़ते जा रहे हैं, हर बार हम नए नए लोगों को सुनते हैं, बहुत आना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि अब हम ज्यादा लोगों को अपने साथ ले नहीं सकते, बैठाएंगे कहाँ? ये हॉल ऐसा भर जाता है कि मुश्किल हो जाती है। इस बार खजाना बहुत ही खूबसूरत है, इसमें जो कलाकार नए जुड़े हैं आप सब उनको जानते ही हैं, उन्होंने अपना नाम बनाया है अपने काम में, लेकिन खजाना में उनका आना हमारे लिए बहुत खुशखबरी है। और मुझे विश्वास है कि इस बार जो खजाना की खुशबू होगी वो बहुत दूर तक जाएगी, बहुत फैलेगी। खुशबू पे एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि खुशबू को महकने का हक है, खुशबू को महकने का हक है, लेकिन हवाओं से दोस्ती करनी होगी। तो ये जो खजाना है ये वो हवा है कि यहाँ आइए और अपनी खुशबू को दूर दूर तक भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। I'd like, thank you Anup Bhai, thank you for your wonderful words. I'd like to invite Talat to come and say a couple of words, please. Good afternoon, ladies and gentlemen, and मेरे दोस्तों ने आपको बहुत सारी बातें बता दी और मैं दोहराऊंगा नहीं। अनूप भाई ने एक बहुत खूबसूरत शेर कहा खुशबू के बारे में, तो मैं एक दूसरा शेर पढ़ देता हूँ। तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, जैसे कि पंकज बताएं कि हम 2002 में साथ बैठे थे और ये आइडिया निकला, लेकिन आइडिएशन अलग चीज़ है और
पर काम करना वो दूसरी चीज है। मैं चाहूंगा कि पंकज भाई, उनकी बेटी नायाब, जो आइडिया था वो तो हमने किया, लेकिन उस पर मेहनत ये लोग किए हैं, तो गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ये 16 साल एंड आई विश दैट, अभी जैसे कह रहे हैं कि अभी तो जवान नहीं हुए ना, अभी तो बालिग नहीं हुए, मेरे ख्याल 18 साल में या 21 साल में, क्या पता नहीं लॉ क्या है यहाँ, जो भी है हम तो चाहेंगे कि 100 साल तक ये चलते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Bhupi ji is not here, Bhupinder Singh ji is not here this afternoon, but I would like to invite his better half, Mithali ji, to come and say a couple of words. Thank you, Pankaj ji. Thank you, Manoj ji. Thank you, Talat ji. Nayab, everyone, Rekha, Papan, Pooja, Sona, husband, wife, couple, सब जितने बैठे हुए हैं, all very talented, पार्थिव, सुदीप जी। सच बोलूँगी कि जो तलत जी ने अभी कहा कि आइडिया लेना और उसके ऊपर काम करना बहुत तो अलग बात है, बहुत मेहनत की है पंकज जी ने। और इस साल मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो फेलिसिटेशन भूपी को दे रहे हैं, आई थिंक इट्स वर्थ। वो बहुत एक चुपचाप रहने वाले और कहीं नहीं जाने वाले इंसान हैं, और खाली इतना ही कहूँगी, बहादुर शाह जफर साहब के गज़ल उन्होंने रिकॉर्ड किया था 62 में दिल्ली रेडियो में, कि लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दया में। मदन मोहन साहब गए थे और उन्होंने उनको सुना और उन्होंने कहा कि कभी मैं बॉम्बे बुलाऊं तुम आओगे? तो भूपी ने कहा कि ये लोग तो कह के चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने बुलाया था और वो गाना हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया, जिस हकीकत में उन्होंने एक्टिंग भी किया था। चेतन आनंद साहब ने कहा कि तुम्हें एक्टर बनना पड़ेगा, और वो दिल्ली भाग गए थे क्योंकि बोलते मैं कैमरे के सामने कभी किया ही नहीं। लेकिन ये क्लिपिंग आप ज़रूर देखिए कि इतना अच्छा एक्टिंग किया था उन्होंने। और उसके बाद एक पिक्चर उनके लिए लिखा था जो राजेश खन्ना साहब का उनका ये था डेब्यू था, मैं नाम भूल रही हूँ, ख्याल आखिर ख्याल। तो चेतन आनंद साहब ने कहा तुम्हें क्या हो गया, पंजाबी तो गालियों में बात करते कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे में क्या है। लेकिन उसमें एक गाना है रुत जवां जवां, ख्याल साहब ने सोलो गवाया था। मैंने पंकज जी को अगेन थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वीडियो मैंने उनके ऊपर बनाया था, तो शायद खजाना को हम दिखाएंगे, भूपी के ऊपर फिल्म में मैंने बनाया है। बहुत सारी बातें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। 12 स्ट्रिंग गिटार, चंदाओ गाना जो है लता जी का, द फर्स्ट टाइम ही रिकॉर्डेड इन मद्रास में किया था। ऐसे ही ऊद, रबाब, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। ये जो आर.डी. बर्मन के साथ जुड़े, सिर्फ आर.डी. बर्मन नहीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिर गलंजी आनंद जी एंड शंकर जयकिशन साहब, सबके साथ। लेकिन मैं हमेशा पीछे पढ़ती हूँ, किताब तो लिखो, क्या लोगों में क्या बताना है, क्या है, सबको पता है। ऐसे है वो इंसान, पर बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू अगेन। और ये खजाना सचमुच अनूप जी ने जो कहा और तलत जी, पंकज जी जो कहा कि ये हर साल मुझे इतने फ़ोन आते हैं पासेस कहाँ मिलेंगे, लेकिन पासेस की गुंजाइश ही नहीं रहती है। तो आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ दिस जॉनर गज़ल कि चुपचाप है लेकिन वेरी स्टेडी है। हर साल शेर और पोइट्री सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, ladies and gentlemen. We are almost done with everything. If you have any questions, if you have anything to talk, the artists are going to be here.
So you can interact with the artist, you can take all your notes or video bites or whatever. And obviously there is lunch, so please join us for lunch, and also for whatever short interviews you want to do. Once again, thanks Oberoi, and thanks everyone. Thank you. बहुत खुशनसीब हूँ पहले तो कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया गाने के लिए, तो नर्वस भी हूँ इसीलिए और बहुत खुश हूँ, और इट्स एन ऑनर प्लेजर एट द सेम टाइम। और ये जैसे बोल रहे हैं 16 साल है, तो 16 इज़ ए इम्पोर्टेंट फिगर। मैं अभी 16 साल का ही हुआ हूँ, तो मेरा भी शुरुआत है गज़ल के मैदान में। तो कोशिश है कि आई कैन एन्जॉय द मोमेंट, एंड बरसों से ये चाह था कि गज़ल के साथ कुछ करूं, और पहला कॉन्सर्ट एक ख़जाना में है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड ऑल्सो इट्स ऑल्सो इन एड विद कैंसर पेशेंट्स एंड थेरेस्मिक पेशेंट्स, सो द कॉज इज़ वेरी नाइस, तो दुगुना है खुशी इसीलिए। एंड उम्मीद है कि ये शुरुआत है और लंबा होगा मेरी कहानी, सो आई एम होपिंग टू बी पार्ट ऑफ खजाना फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपकी सिंगिंग स्टाइल की बात करें तो इट्स टोटली डिफरेंट एज कंपेयर टू गज़ल एंड ऑल। सो आप किस तरह से देखते हैं गज़ल को, किस तरह से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, या कभी आपने गाया है कोई गज़ल? मैंने गज़ल गाया अभी हाल ही में, जो दीपक पंडित जी ने कंपोज किया, अरेंज किया है, और वो बहुत खुश थे। उन्होंने बोला कि बहुत ही कम है आपके जैसे गाने वाले आज के इसमें गज़ल के उसमें, तो अब दीपक पंडित से सुनना बहुत बड़ी बात है, तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। और लोगों ने मेरी शायद आपने पूछा कि गज़ल मैंने गाया है कि नहीं, बट मैं अगर मुझे आप पूछे बचपन से अगर बॉलीवुड के कोई गाना गाऊं, एक भी पूरा नहीं आता। गज़ल पूछे तो 10 आएगा। तो मैं एक्चुअली गज़ल पहले गाता था, किसी को पता नहीं था। नहीं कुछ क्या गाऊं मैं, अभी ऐसे माहौल में सब तरफ लालाकारी है, तो कभी बाद में आपको आऊँगे शायद होपफुली वहाँ पर, तो तभी सुन लीजिएगा। आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा, रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ हैपन इन अमरनाथ यात्रा, व्हाट यू वांट टू से, हाउ यू लुक दिस काइंड ऑफ। मैं देखता ही नहीं ये सब, अब क्या बोले, ये सब ऐसी घटनाएं जो देश में हो रही है, उनको मुझे लगता है निंदा तो कर ही जा रहे हैं लोग, लेकिन जितना आप इसको आप लोग भी हम लोग भी जितना फैलाएंगे वही चाहते हैं वो लोग कि ये न्यूज़ फैले। मैं तो कहता हूँ कि इसको जिनको काम करना है वो करें, उनको निपटाए और ख़त्म कर दे,
और हम लोग इसको बढ़ावा ना दें। आई मीन तो इससे भी मैं मतलब असम फ्लड के बारे में आपको पता ही ना होगा शायद, 40 लोग मर गए, अभी 16 लाख लोग वहाँ पानी रास्ते में रह रहे हैं, सड़क पे रह रहे हैं, वो भी मौत है एक तरह का। लेकिन हमारे यहाँ ड्रामा को देश में ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। सैड तो है किसी का भी गुजरना, बट आई थिंक हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए ऐसी बातों को, और जड़ से ख़त्म करने के लिए जिनके पास पावर है, फोर्सेस हैं, उनको आराम से काम करने देना चाहिए। थैंक यू सो मच। खाना गज़ल खजाना के बारे में क्या कहेंगे? Thank you so much. For me, it's a really new experience because I'm basically from South. I'm a playback singer from Kerala, so this is a new departure, from playback singing. But I've been an ardent fan of ghazals, and I've been listening to all the legends from, Mehdi Hasan Saab to Pankaj Ji to Jagjit Ji. So I've tried to sing ghazals over these years, and it's truly an honor that Pankaj Ji has given me an opportunity to perform in this amazing festival, and glad to be part of this rich heritage called Khazana. And this year we have the legendary Bhupinder Ji being felicitated, and for me it's also a personal honor and an occasion of extreme happiness because my new ghazal album will be launched on the 22nd by Pankaj Ji himself, and all the compositions have been composed by Ustad Siraj Khan Ji, and the poems are from traditional poets. So I'm really looking forward to present it to this incredibly elite audience and lovely musicians, and looking forward to perform with legends like Rekha Bharadwaj Ji, Pankaj Ji, and of course Talat Ji, everybody from Anup Jalota Ji. So thank you so much. ऐसे में एक शेर याद आता है कि 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ऐ प्यार की पहली उम्र को सलाम। ये जो 16 साल हो गए खजाना करते करते, और इस साल हमारे पास 16 सिंगर्स हैं, ये और भी खूबसूरती है। हमें विश्वास है कि लोगों को बहुत मज़ा आएगा इस बार, पहले से भी ज़्यादा आएगा। बड़े अच्छे सिंगर्स हम लोग ने जोड़े हैं इस बार, जो फिल्म म्यूजिक में अपना अच्छा नाम कर चुके हैं, जिसे हम मौजूद सुनेंगे। इस तरह की चीज़ें करने से एक नई खुशबू मिलती है, कुछ नया मज़ा आता है, और इस बार का जो खजाना है वो एक नई खुशबू लेके आ रहा है। सर एक क्वेश्चन ये, जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं ना वो लाइव करें, लेकिन अब सर जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें पब्लिक नहीं पहुँचती, तो सोचती है कि सोशल मीडिया पे हम लोग बाद में देख रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब सोशल मीडिया पे इतना हाइप पे जा रहा है, बात करें वो 7 घंटा सोशल मीडिया पे मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि वो जरूर देखें, लेकिन रिपीट देखें, पहले लाइव देखें। लाइव का जो मज़ा है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद जो हम उसको बाद में जो रिपीट देखते हैं उसमें तो काफ़ी कुछ एडिट किया जाता है, एडिट करने के बाद कुछ चीज़ें आप मिस कर जाते हैं। इसलिए बेहतर है लाइव देखिए, उसमें वो सब देखिए जो वहाँ हो रहा है, पूरा रिस्पॉन्स देखिए, हर आर्टिस्ट का रिएक्शन देखिए, ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं उनके रिएक्शन देखिए। तो मुझे लगता है मत छोड़िएगा, लाइव जरूर देखिए। सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आप ये हो रहा है कि स्टार्टिंग में शायरी होती थी वो फीमेल के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर होती थी, लेकिन आप जितने सब कुछ हो रहे हैं पॉलिटिक्स इसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए शायरी वैसे तो ये कहा गया है कि महबूब की बातें या महबूब से बातें, ये सर यही शायरी है। बाकी कुछ जो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके आजकल लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि शायरी लिखी जाती है, लेकिन हम उसको गज़ल नहीं कह सकते, क्योंकि गज़ल तो वही होगी जो महबूब के बारे में होगी या महबूब से बातें करना वो वही गज़ल होगी। चलो
आज फिल्मों में गज़लों के लिए सच में जगह नहीं है, क्योंकि जिस तरह की फिल्में बनती हैं उसमें गाने चाहिए, बेबी डॉल, तो अब अगर मुमराव जान बनेगी तो फिर गज़लों को जगह मिलेगी। लेकिन कुछ अरसे से फिल्में ऐसी आ रही हैं जिसमें भजन के लिए भी जगह नहीं है और गज़ल के लिए। थैंक यू। मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करता हूँ, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम करता हूँ, तो क्यों ना हम सब मिलके एक ऐसा प्रोग्राम करें कि जिसके ज़रिए पैसा इकट्ठा जो होता है वो इन बच्चों को काम आए। तो सबने हाँ भर दी, सबने कहा बिल्कुल। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। 2002 में वो एक मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो ये कारवां आज 16 साल के बाद इस मकाम पे पहुंचा है कि कारवां बहुत बड़ा हो गया है, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और सब इस वजह से जुड़े हैं कि ये गज़ल का एक ऐसा फेस्टिवल है कि जिसमें गज़ल का सेलिब्रेशन होता है। और इस फेस्टिवल के ज़रिए हम हर साल कोई ना कोई नए कलाकार को पेश करने की कोशिश करते हैं। नए कलाकारों को जो सीजन बड़े कलाकार हैं उनके साथ बिठाते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। और अब के साथ तो हमारे पास कई ऐसे आर्टिस्ट आए हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम किया है, लेकिन उनको शौक़ है, वो चाहते हैं कि वो अपनी तरफ से कुछ योगदान दें। तो पेपॉन है, सोना मोहब्बतरा है, बिरांडे शाह है, समीर दाते हैं, दीपाली दाते हैं, पूजा गायतोंडे हैं, ये सब लोग एक साथ में आके खजाना से जुड़े हैं। तो अब के साल का जो कार्यक्रम है उसकी फ्लेवर कुछ अलग ही होगी, कुछ अलग अंदाज में होगा। और मुझे लगता है कि 16 साल का सेलिब्रेशन बिल्कुल सही अंदाज में हो रहा है। जैसे गज़ल खजाने की बात करें तो 16 साल से चलते हुए आ रहा है, ईयर बाय ईयर लेवल अप होते जा रहा है, इसका प्रोग्रेस होते जा रहा है, नए नए कलाकार जुड़ रहे हैं। तो आपका क्या सपना है खजाना, गज़ल खजाना को लेकर कहाँ तक पहुँचाना है इसको? जहाँ तक खजाना का सवाल है, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि आने वाले कई सालों तक खजाना इसी तरह चलता रहेगा। और जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, यानी वो बड़े से बड़ा ही होता जाएगा। मेरी एक ख्वाहिश है कि खजाना जो है वो अब दुनिया के कोने कोने तक जाना चाहिए। इसका मतलब कि दुनिया के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ खजाना होना चाहिए, जैसे कि दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है, बेंगलोर है, और उसके बाद फिर आगे चल के लंदन है, न्यूयॉर्क है, दुबई है। तो इन शहरों में ख़जाना होना चाहिए ताकि हम लोग कैंसर पेशेंट्स और थैलेसीमिया बच्चों के लिए ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकें, हम ज़्यादा कलाकारों को मौका दे सकें और हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। ये मेरी ख्वाहिश है। पंकज, आपसे जानना चाहूँगा कि रिसेंटली हुए इंसिडेंट अमरनाथ यात्रियों को मारे गए जी, आप किस तरह से इस टेररिस्ट अटैक को देखते हैं? क्या आपके थॉट्स हैं? लोग आज भी इस तरह के अटैक्स को, रिलीजन्स को टारगेट करते हैं, आपका क्या मानना है? एक कलाकार होने के नाते मैं यही कह सकता हूँ कि टेररिज्म जो है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई मजहब नहीं होता। और ये बहुत दुख की बात है कि ये ऐसे ऐसे हादसे होते हैं कि जहाँ पे एक निर्दोष, एक बिल्कुल इनोसेंट आदमी जो है उसकी जान जाती है, वो जान गंवाता है, और उसके पीछे जिम्मेदार जो लोग हैं वो टेररिस्ट हैं। तो मैं तो यही दुआ करूँगा कि पूरी दुनिया से टेररिज्म जो है वो ख़त्म होना चाहिए और पूरी दुनिया में सुकून होना चाहिए, अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। इस जर्नी के बारे में तो क्या कहूँ, क्योंकि आप देखिए कि 16 साल से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। इसका मतलब कि इसमें कितनी अच्छी बातें होंगी जो इसको इतने सालों से कर सक रहे हैं। और
सबसे ज़्यादा इसमें खूबसूरत बात जो है कि एक गज़ल फॉर्म को ज़िंदा रखने के लिए, गायकी पोइट्री को ज़िंदा रखने के लिए ये शुरुआत हुई और इसके जितने भी टिकट्स बिक के जो भी पैसे आते हैं वो एक नोबल कॉज के लिए जाते हैं। तो ये कहते हैं ना सोने पे सुहागा, एक साथ आप वो इतना कुछ अचीव कर रहे हैं। और जो सबसे अच्छी बात और मुझे लगती है ख़जाना में वो ये लगती है कि नए सिंगर्स जो सिर्फ गज़ल में अपना करियर बना रहे हैं उनको मौका मिलता है, उनको प्लेटफॉर्म मिलता है। और जो बिल्कुल छोटे बच्चे उनमें जो अच्छा गाते हैं उन्हें आप उनकी हौसला अफजाई करने के लिए उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलता है। और जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, अनूप जी हैं, तलत जी हैं, पंकज जी तो हैं ही, ये तीन लोग तो आपस में इनका मतलब इनका ही ये बेबी है ख़जाना जो फेस्टिवल है। इनके साथ साथ जब वो अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन को भी बुलाते हैं, राजकुमार रिजवी साहब भी आते हैं, हर बार सीनियर आर्टिस्ट में भी अलग अलग आर्टिस्ट आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यंगर जनरेशन के लिए कि उनको ये आर्टिस्ट लाइव सुनने के लिए मिलते हैं, जिनकी वजह से आपको एक, क्योंकि गज़ल का जो एक अपना अंदाज़ है गायकी का भी, और अगर आप सादगी से गा रहे हैं तब भी उसका लफ्ज़ों का जो एक अदायगी है शेर की, क्योंकि गज़ल तो फॉर्म जो है मेनली तो पोइट्री है, उसकी जो शायरी है उसको हम गाते हैं। तो ये इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता और इससे अच्छा ये फेस्टिवल नहीं हो सकता, क्योंकि ये फेस्टिवल बनता जा रहा है और सारे साल लोग फिर इंतज़ार करते हैं अगले ख़जाना का। और जैसे कि अनूप जी भी बता रहे थे और मुझे भी कुछ लोग बता रहे थे कि वो बाहर से लोग स्पेशली आते हैं, अपना ट्रिप इस तरह प्लान करते हैं, जैसे उन्हें पता लगता है कि ख़जाना इस टाइम में हो रहा है तो वो अपना ट्रिप इस तरह प्लान करते हैं कि उनका इंडियन विज़िट भी हो जाए और उस वक्त वो ख़जाना अटेंड करके जाए। और जो पिछले कुछ आई थिंक 2 साल से हो रहा है कि हंगामा जब से जुड़ा है ख़जाना के साथ तो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, जिससे रीच और बढ़ रही है। क्योंकि लास्ट ईयर मुझे ख्याल है कि मैं इससे पिछले साल भी गाया था, तो ये मेरा 3रा साल है और मैंने यही कहा था कि मैं जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं आऊँगी, क्योंकि मैं इस बड़ी सी फैमिली का जो हिस्सा बन चुकी हूँ। तो मोर देन सिंगिंग या बस एक फेस्टिवल में आने के साथ साथ ये मेरे लिए एक पारिवारिक जो मेरा रिश्ता बन चुका है, फैमिली का रिश्ता हो गया है, ये वो ज़्यादा है। और आई थिंक दैट्स द स्पेशलिटी अबाउट ख़जाना कि यहाँ रिश्ते आपके बनते जा रहे हैं और आपकी जड़ें जो हैं वो गहरी होती जा रही हैं इस विधा में। क्योंकि गज़ल जो है वो ऐसी फॉर्म है कि वो थोड़ा डिप लेती है बीच बीच में, लेकिन फिर आ जाती है उभर के। और ये दौर कुछ सालों से ऐसा चल रहा है, पिछले 3-4 साल से, जहाँ गज़ल फिर बहुत उभर रही है और उसमें ख़जाना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो more than proud, I would say I am proud to be part of ख़जाना। I am fortunate कि मैं इस ख़जाना फैमिली और इस सेलिब्रेशन फेस्टिवल जो गज़लों का है, जहाँ गज़लें सेलिब्रेट की जाती हैं, और उसमें ये भी नहीं है कि सिर्फ गज़ल आर्टिस्ट ही आ रहे हैं। जैसे इस बार शोना महापात्रा हैं, पपॉन हैं, जो प्लेबैक बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनकी प्राइवेट एल्बम्स भी आई हैं, लेकिन उसके साथ साथ गज़ल के लिए क्योंकि पैशनेट है तो उनको भी लिया गया है। स्नेहा शंकर बहुत ही खूबसूरत वो गाती है, बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत अच्छा गाती है, उसको ये प्लेटफॉर्म दिया है। तो दिस इज़ द वे टू एक्सपैंड, और एक्सपेंशन इज़ द ओनली वे टू ग्रो। गज़ल आज भी ट्रेंड में, आज भी लोग सुनते हैं तो कोई सुकून मिलता है सुनने में। क्या कहना चाहेंगे कि इतने सालों से चल रहा है बट आज भी लोगों को गज़ल सुन के एक सुकून मिलता है? गज़ल तो हमेशा चलेगी क्योंकि गज़ल से सुकून मिलेगा। गज़ल से, क्योंकि जो शायरी है वो शायरी वो है जो हम सब उन इमोशन से, उन एहसासात से गुज़रते हैं ज़िंदगी में किसी ना किसी वक्त। और जब यंग होते हैं तो इसलिए रोमांटिक शायरी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और फिर वही एसोसिएशंस बनते जाते हैं, आपके नॉस्टैल्जिया बनता जाता है। आप उन आर्टिस्ट को सुन सुन के
आपके दिमाग में वो हर वक्त हर मौके के लिए कोई ना कोई शेर है, कोई ना कोई गज़ल है, या कुछ उसकी जब मेलोडी होती है साथ में धुन बन जाती है और उसकी जो अदायगी होती है, तो उससे आपके इमोशंस को, आपके एहसासात को आवाज़ मिलती है। इसलिए गज़ल तो हमेशा ज़िंदा रहेगी। पुराने गज़ल आज भी फिल्मों में यूज़ किए जाते हैं, आज भी मूवीज़ में डाला जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे कि लाइक अभी न्यू गज़ल लाइक इतना नहीं करना जितना पुराने गज़ल? आई थिंक गज़ल में नया पुराना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अदायगी को आप कह सकते हैं कि सबके अपने अंदाज़ हैं अदा करने के। कि एक वक्त में सिर्फ तबला और हारमोनियम, सारंगी, ट्रेडिशनल अंदाज में गज़ल गाई जाती थी। उसके बाद जगजीत जी ने एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन जो वो लेके आए कि गिटार्स का जितनी खूबसूरती से उन्होंने इस्तेमाल किया, कीबोर्ड के साउंड्स, उससे जो स्ट्रिंग सेक्शन वो बहुत अच्छा खूबसूरत इस्तेमाल किया। उससे फिर धीरे धीरे वो वक्त बदला। अब के जो म्यूज़िशंस हैं उनका एक्सपोजर वेस्टर्न म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा है, तो अब हम उसको एक फ्यूज़ करते हैं या उसको अपनी एक इंटरप्रिटेशन भी हमारी मिल जाती है। जब हम पुरानी किसी आर्टिस्ट की गज़ल गाई हुई गज़ल को भी गाते हैं तो उनकी तरह एकदम गाएंगे तो वो तो बासी ही लगेगी, क्योंकि उनसे अच्छा हम गा नहीं सकते। लेकिन जब उनकी गज़ल को हम एकदम आत्मसात कर लें, अपना बना लें और उसको फिर अपने ढंग से अभिव्यक्त करेंगे, तो उसमें ऑर्केस्ट्रेशन में आप थोड़ा सा बदलाव ले आते हैं, उसको आप अपने ढंग से ऑर्केस्ट्रेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। और गायकी जितनी आपकी जैसी जैसी समझ है, जैसी समझ बढ़ती है आप वैसे उसकी गायकी करते हैं। बॉलीवुड में ऐसे बहुत से सुपरहिट गाने हैं जो आपने गाए हैं, उनमें से ही एक गाना है फिर ले आया दिल जो आपने गाया, वो बहुत ही सुपरहिट गाना है, लोग आज भी उसे गुनगुनाते हैं। तो 2 लाइन आपके। हाँ, और फिर ले आया दिल इनफैक्ट गज़ल ही है, गज़ल फॉर्म में ही है। इश्किया में अब मुझे कोई इंतज़ार कहाँ, जो गुलजार साहब ने लिखी वो भी गज़ल है। तो ठीक है, फिर ले आया दिल, फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजे रास ना रहना दूर क्या कीजे दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। थैंक यू। आपसे रिएक्शन जानना चाहूँगा, रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है अमरनाथ यात्रा में आपको इस तरह से देखते हैं टेररिस्ट अटैक, तो आपके क्या थॉट्स हैं? इन जनरल कोई भी टेररिस्ट अटैक मुझे नहीं लगता कि वो सराहा जा सकता है। ये बहुत ही ख़राब बात है, किसी को हक़ नहीं है किसी इंसान की जान लेने का। और इन जनरल आई कंडेम एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट एक्टिविटी। और सिर्फ ये मारने से नहीं, जो टेररिज्म, जो टेरर कहते हैं ना हम फैलाना, वो इन जनरल किसी भी किस्म का इज़ वेरी बैड। इससे ज़्यादा ख़राब बात आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये कायनात जो है, ये ज़िंदगी जो है, ये तो ऊपर वाले से मिली है और किसी को हक़ नहीं है इसे ख़त्म करने का। थैंक यू।